थोड़ा सा। यस, करेक्ट। करेक्ट है सर, बच्चे बोलो। ओके, सुलेमान शेख जॉइन। सही दिखाई दे रहा बेटे आपको? ओके, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला आर्टिकल, और ये होगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर लास्ट लेक्चर। अभी तक जितने आर्टिकल्स हमने कवर किए कर लिए हैं, तकरीबन 8.11 मतलब 11 से 12 आर्टिकल्स तक हम यहाँ इसमें पहुंचे हैं। बीच में एक दो आर्टिकल्स जो कट किए गए थे उसको अपन ने हटाया है बोर्ड की तरफ से, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बच्चों, अभी आज का जो आर्टिकल है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी stored in a capacitor। बच्चों, आपको पहले दिन ही ये बात बताई गई थी कि कैपेसिटर वो कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर्स आर दोस कंपोनेंट्स व्हिच स्टोर्स द एनर्जी एट लो पोटेंशियल। तो आज हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एग्जाम में जनरली यही पूछता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो देखिए स्टेप्स कैसे हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इस फिगर को देखिए। लेट अस सपोज a condenser is there, a capacitor is there, and a potential is applied across it. Let Q be the charge at this capacitor and V be the potential. V be the potential across this condenser or capacitor. फिगर दिखाई दे रही है सबको? उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, मुकशफे में मौजूद तवानाई के लिए मसावात। मुकशफे में तवानाई की मसावात। ये है उर्दू मीडियम के लिए आर्टिकल। पहले मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट Q be the charge which is given to this particular capacitor and V be the potential across it. Then what will be the capacity of that capacitor? C is equal to Q upon V, isn't it? So if suppose, what is the work done? If suppose this Q dash charge or Q charge is brought from or taken out from this capacitor to here, means this plate to this plate, then some work has to be done. So how to calculate that work? A small amount of work is done if a small charge dq is further transferred between the plates. अगर इन प्लेट्स में किसी और चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफर करना है तो एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज कॉल्ड एज dw. द स्मॉल वर्क हैज टू बी डन to move the charge from one plate to another plate.
This small work dW is nothing but V into dq, isn't it? Means to transfer this particular charge dq, if V potential is applied, then the product of V into dq is the small work done to move or to transfer the charge from one plate to another plate. This is a small work. What will be the total work done? Therefore, the total work done in transferring the charge, W is equal to integral dW. W is equal to integral dW. That will be between the limits 0 to q, V into dq. So what is V? If suppose we have written this formula C is equal to Q by V here, that is the formula for capacity of the capacitor, then from this equation we can write V is equal to Q by this C. So instead of this V, we can write here Q upon C. So in this integration between 0 to Q, instead of V, we are writing here Q upon C into dQ. So if we are taking the integration, then what will be that? The integration of common cannot be taken, so it is taken outside 1 upon C into integration 0 to Q, Q by C, sorry, Q into dQ. So integration of Q is Q square by 2, isn't it? So that is between the limits 0 to Q. Therefore, 1 by C into Q square by 2 between the limits 0 to Q. तो अगर हम Q को पहले लें, Q स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा और ये 1 by 2 इधर ले लेंगे, तो ये 1 by 2 into Q square, isn't it, divided by this C, क्योंकि बाकी की जो 0 लिमिट है वो इधर माइनस में आएगी, तो जवाब क्या आएगा? 1 by 2 Q square C. What is this? This is the total work done. ये एक्सप्रेशन हमने निकाले हैं टोटल वर्क डन के लिए, और ये वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी or electrical potential energy U of the capacitor, and this work done can be explained in different forms. यहां पर आप 2 लाइन लिख सकते हैं कि this work done is stored in the form of electrical or electrostatic potential energy, and that can be written as U is equal to 1 by 2 Q square by C. So this is the expression, and this can be written in another 2 forms. अब हम इसको 2-3 फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं. ये फॉर्मूले में क्या है? C इज इक्वल टू Q बाय V, तो यहां पर वो, या Q इज इक्वल टू CV है, तो उसका इस्तेमाल करके लिखेंगे. देखिए कैसे कैसे बनता है फॉर्मूला, isn't it? यहां पर ओके, यहां पर मैं लिखता हूं, ये अपनी मेन इक्वेशन है. U इज इक्वल टू 1 बाय 2 Q स्क्वायर बटे C. अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो इक्वेशन अपने को मालूम है कैपेसिटेंस की इक्वेशन, C इज इक्वल टू Q बाय V. देयरफॉर व्हाट इज Q? देयरफॉर Q इज इक्वल टू C इंटू V. ठीक है, दिखाई दे रहा है? C इंटू
v। तो ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहां पर q स्क्वायर है तो ये क्या होगा, q स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। ये q स्क्वायर की जगह ये c स्क्वायर v स्क्वायर हो गया। तो यहां पर रखेंगे उसको, क्या होगी फिर इक्वेशन, u इज इक्वल टू 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर, ये इसकी जगह लिखा मैंने q की जगह, और फिर नीचे है ये c। एक c को कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन बचती है वो क्या है, u इज इक्वल टू 1/2 c v स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन, ये इसका एक दूसरा रूप है। ठीक है, इस तरह हम इसको अलग अलग फॉर्म में हासिल कर रहे हैं। दोबारा से देखिए, ये इक्वेशन जो हमको मिली है, ये क्या है, एनर्जी के लिए इक्वेशन है। वर्क डन इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या है 1/2 q स्क्वायर बाय c। किस तरह से आई है आप देखें हैं पिछले 2-3 स्टेप्स। इसको यहां से मैंने लिखा इधर डबल से, और फिर क्या किया, जो कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन है c इज इक्वल टू q बाय v, दिख रही है इक्वेशन। ओहो, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहां पर हुआ है। हेलो, आप सब देख रहे हैं, ये कैमरा यहां से स्लिप हो गया था टेबल से, इसलिए थोड़ी सी आपको डिस्टरबेंस हुई है, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, पहले मैं इसको आपको कोशिश करता हूं, पहले ये इक्वेशन की तरफ लाते हैं आपको। फर्स्ट, ये पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये जो फिगर है, राइट। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी जरा ध्यान दीजिए इस फिगर की तरफ। सपोज इस फिगर में कैपेसिटर है और ये पोटेंशियल उसके क्रॉस में लगाया हुआ है V। यहां वही लिखा है मैंने, लेट Q विद द चार्ज एट दिस कैपेसिटर, Q या Q डैश अपन लिख सकते हैं। V इज द पोटेंशियल अक्रॉस इट, मतलब इसके अतराफ में लगाया गया जो हवा है वो V है सपोज। तो फिर हमको कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन हमने जो पिछले घंटे में वही लिखा है, C इज इक्वल टू Q बाय V। यह Q डैश बाय V भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। इस तरह ये इक्वेशन आएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी चार्ज को एक कैपेसिटर के प्लेट से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए वो काम बताया गया है यहां पर, W इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। देखो बच्चों, ये काम की डेफिनेशन के हिसाब से है ना, और उसके हिसाब से पोटेंशियल और चार्ज इसका हासिल ज़रब जो है वो किया गया काम है, इसके लिए लिखा है इसको ऐसे। ठीक है, W इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा उसका, अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं यहां पे, W इज इक्वल टू इंटीग्रल dw, वो लिमिट्स लिखना चाहिए यहां पर 0 टू Q। तो ठीक है, यहां लिखा है मैंने dw के लिए, ये ऊपर का फार्मूला लिखा है V इंटू डी क्यू, और ये W इज इक्वल टू V के लिए क्या हो सकता है वो उसको हमने यहां से लाया। देखिए, V इज इक्वल टू Q बटे C, V इज इक्वल टू Q बटे, तो यहां पर हमने उसको लिखा है, ये V इज इक्वल टू, अमीर सर प्लीज हेल्प मी, ये कैमरा नीचे गिर गया था, मैं इसको हाथ में पकड़ के बढ़ा रहा हूं जब से। कोऑर्डिनेटर का रहना जरूरी रहता है सर, इसलिए सर ये उठाओ आप। नहीं, रोकना नहीं था।
हम्म, हम्म। ये क्या है देखिए। तो बच्चों मैं यहां तक आ गया था, आपको ये एक्सप्रेशन समझा रहा था मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसकी एक्सप्रेशन कैसे मालूम करते हैं। तो यहां देखा हमने कि वर्क डन के लिए यहां तक हम पहुंच चुके थे, v इंटू डी क्यू, और फिर v की वैल्यू यहां से रखा हमने, v इज इक्वल टू क्यू बाय सी, 0 टू q के लिमिट्स के अंदर q बाय सी इंटू डी क्यू। उसके बाद w इज इक्वल टू, जो कॉमन है इंटीग्रेशन के बाहर लिया, 1/c। अब इंटीग्रेशन लिया है q का विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू, तो फिर यहां पर इंटीग्रेशन लेके बताया गया q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू q, और ये 2 ये भी कांस्टेंट है इसलिए इसको भी बाहर निकाला और ये c को अंदर लिखा, तो 1/2, ये q की जगह ये q स्क्वायर और ये c। इस तरह इक्वेशन मिली है w इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर c। ये टोटल वर्क डन के लिए इक्वेशन है। कुल किया गया काम, ये कुल किया गया काम जमा होता है तवानाई की शक्ल में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको U से जाहिर करते हैं, इसलिए U इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाय c। यहां तक तो ठीक है, बोलिए यस और नो। ओके, फिर आगे बढ़िए, देखिए इसको। अच्छा यस, ओके पठान नीदा, ओके सैयद इफ्रा, यस ओके ठीक है। अब हमको इस इक्वेशन के और 2-3 रूप मालूम करना है, अलग अलग फॉर्म्स। क्यों लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि टोटल काम करना है, मतलब सिर्फ हमने एक चार्ज को इधर से इधर लेके देखा पहले, अब हम कई चार्जेस को इधर से इधर ले जा रहे हैं समझो, तो इधर टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मतलब प्लेट पर जितने बर्फी बार है उनको इधर से इधर ले जाना है। सिर्फ एक बर्फी बार को ले जाने के लिए इतना काम करना पड़ रहा था, तो बाकी बर्फी बारों को ले जाने के लिए, ऐसा टोटल काम मालूम करने के लिए हमने उसको इंटीग्रेशन लिया, टोटल वर्क डन। ये किया गया काम था छोटा सा, ये टोटल कुल किया गया काम है, इसलिए इंटीग्रेशन लिया गया है। अच्छा किसी ने सवाल पूछा था ये। अब चलिए ये इक्वेशन तो अपने को मिल गई, इसके अलग अलग रूप अपने को मालूम करना है कैसे होते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, Q मसावी है CV, ऐसा हो जाता है। तो फिर Q स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा C स्क्वायर V स्क्वायर। इस तरह फिर हमने वो मेन इक्वेशन में उसको रखा है 1/2, ये Q स्क्वायर की जगह क्या रखे हैं, C स्क्वायर V स्क्वायर, इसको लिखे हैं डिवाइडेड बाय C होता है, C कैंसिल करने के बाद जो बचता है वो है 1/2 CV स्क्वायर। बच्चों ये भी बहुत मेन इक्वेशन है, जब हमको कोई सवाल पूछते हैं कि फाइंड दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जब हम इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं। दूसरी और भी एक इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V, इस तरह भी लिख सकते हैं। गौर करके देखिए कैसे लिख सकते हैं उसको 1/2। अब इसको 1/2 Q इंटू V कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू Q बाय C, इसलिए Q बाय C ये लिखने के बजाय, जैसे ये Q है, Q स्क्वायर है, तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाय C ऐसा लिखते हैं, तो ये Q बाय C क्या हो जाता है, ये V हो जाता है। इस तरह ये मेन इक्वेशन कैसी बनती है, 1/2 Q इंटू V, इस तरह बनती है। तो इस तरह ये 3 इक्वेशन, जैसे ये 1/2 Q स्क्वायर बाय C, दूसरी इक्वेशन इससे ड्राइव करके जो आई है 1/2 C V स्क्वायर, ये स्क्वायर है देखिए यहां पर दूसरी, और ये तीसरी इक्वेशन 1/2 Q इंटू V। इस तरह ये तीनों इक्वेशन, ये इसके अलग अलग रूप है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हमने अभी तक
पढ़ा है, समझने की कोशिश की है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अब हम इस पर बेस्ड एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेंगे बच्चों, जो इम्तिहान में जनरली पूछता है। तो पहले प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो फटाफट इसको लिख कर ले सकते हैं। जैसे जैसे मैं इधर पढ़ रहा हूं आप लिख कर ले सकते हैं, वैसे भी मैं इसको यहां पर डिक्टेट भी कर रहा हूं और उसके साथ साथ लिख रहा हूं बोर्ड पर प्रॉब्लम को। देखिए प्रॉब्लम है, a parallel plate air capacitor has a capacitance of 3 into 10 raised to minus 9 farad. A parallel plate air capacitor दिख रहा है, has a capacitance of 3 into 10 raised to minus 9 farad. एक कैपेसिटर है, उसके अंदर जो उसकी मुक्षफे की गुंजाइश क्या है, 3 into 10 raised to minus 9. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter completely fills the space between the plates of the capacitor. The PD between the plates of the PD between the plates is maintained. Okay, ये हटा देता हूं यहां से। The PD between the plates is maintained constant at 400 volt, constant at 400 volt. What is the charge? What is the change in the energy of the capacitor? What is the change in the energy of the capacitor? देखो बच्चों मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, इधर आपको सही दिखने के लिए बोर्ड का हाफ सेक्शन मैंने एक क्वेश्चन से छोटे से प्रॉब्लम से भर दिया है। What is the change in the energy of the capacitor if the slab is removed? If the slab is removed, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को अपनी इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग जस्ट लर्न इक्वेशन। अभी अभी जो इक्वेशन अपन ने सीखा था उसके जरिए। बच्चों अभी हमने जो इक्वेशन मालूम किया वो क्या इक्वेशन है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज,
पहले अगर हम एयर को लेके देखेंगे, अच्छा ये बताना जरूरी है आपको कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस मच। मैं बता रहा है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें पहले हवा है, खला, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 × 10⁻⁹ फैरेड। लेकिन इसके अंदर अगर इस गैप के अंदर एक स्लैब को फिलअप कर दिया जाए, भर दिया जाए, इस गैप को एक स्लैब डाल दिया जाए इसके बीच में, उसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 3 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसका 3 है। इस तरह से इसके बीच में एक स्लैब को फिलअप किया गया है। The between the plates, the PD between the plates is maintained constant at 400। तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका अक्रॉस वो कितना होता है 400 वोल्ट, इस तरह मेंटेन रहता है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की तवानाई में तब्दीली कितनी होगी इफ द स्लैब इज रिमूव्ड, जब इसके अंदर का स्लैब हटा दिया जाता है, इस तरह का। तो जो प्रॉब्लम है अपने सामने उसका सॉल्यूशन हम इस तरह निकालेंगे। जस्ट नाउ हमने जो मालूम किया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर इज गिवन बाय 1/2 CV²। लास्ट इक्वेशन अपनी क्या आई थी, किसी भी कंडेंसर या कैपेसिटर की अंदर जमाशुदा तवानाई को मालूम करना है, हासिल करना है, तो इक्वेशन क्या है 1/2 CV²। तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले हवा को ले लेंगे, EA कंडेंसर विथ एयर, EA उसकी एनर्जी निकाल रहा है, EA इज इक्वल टू हाफ CV²। तो यहां पर जो दिया हुआ है उसके बेसिस पर C की वैल्यू और V की वैल्यू इसको रखेंगे। EA मसावी है 1/2 1/2, C की वैल्यू है 3 × 10⁻⁹, V की वैल्यू है 400 और इसका स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये 400 को अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मैं इस तरह लिख रहा हूं, ये तो है ठीक है 1/2, ये 3 × 10⁻⁹ है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये 4 × 100 इट्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 10⁻² इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁴। तो ये कैसे मिलेगा, ये 1/2, ये 3 है ना, ये 3 और ये 4 स्क्वायर जो रहता है वो कितना होगा 16। ये 10⁻⁹ यहां पर है और इसमें का 10⁻² है, 100 मतलब क्या है 10⁻² और उसका स्क्वायर मतलब 10⁴। इस तरह क्या होगा बच्चों, ये 16 × 48, द प्रोडक्ट ऑफ 16 and 3 × 16 is equal to 48 and that 48 divided by 2 is 24 into 10⁻⁻9 plus 4 मतलब -5 and this is energy, the unit of energy is joule। So in this way अगर हम पहली सिचुएशन को कंसिडर करें तो EA मतलब अगर कंडेंसर में हवा है उस वक्त हम इस तरह इसकी इक्वेशन को यूज करके प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको डिफरेंस लिखना है, चेंज, व्हाट विल बी द चेंज। तो अब हम उसको डाइलेक्ट्रिक डाल के उसमें स्लैब डाल के हम मालूम करेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर रहती है और फिर हम देखेंगे कि स्लैब हटाने के बाद जब हवा थी उस वक्त और इस वक्त, उर्दू में भी बताइए प्रॉब्लम। अच्छा